Hello students, now I am going to continue the chapter differentiation of 12th standard. Exercise 1.2, question number 10 and example number 7. So the example is y is equals to tan inverse a plus b tan x upon b minus a tan x. So first we have to compare this example with the formula, that is tan inverse a plus b upon 1 minus a into b is equals to tan inverse a plus tan inverse b. So whenever we have to compare this formula with this example, we see there is no any 1 is here. So to match this example with this formula, यहाँ पे हमें जहाँ पे b है वहाँ पे हमें 1 चाहिए. So we have to divide this numerator and denominator by b. That is why 1 is come here. So tan inverse a upon b, because we are divide each and every term by b. यहाँ पे b tan x upon b, so this b will get cancelled. Again b upon b, that is 1, and a upon b tan x. So यहाँ पे हम देख सकते हैं, that is जो फॉर्मूला था, that is tan inverse a plus b upon 1 minus a into b. तो यहाँ पे a कौन है? a upon b. यस, एंड b इज tan x, एंड इन दोनों का ही प्रोडक्ट हमें नीचे डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है. सो दिस एग्जांपल इज नाउ रेडी टू कंपेयर विद द फॉर्मूला, दैट इज tan इनवर्स a plus b upon 1 minus a into b. And so using the formula we'll get here y is equals to tan inverse a is nothing but a upon b plus b, that is tan inverse tan x. So here is a and b. So a and b. So tan inverse a plus tan inverse b. So y is equals to tan inverse a upon b plus. So you know the formula, that is tan inverse of tan x is nothing but the x. And now differentiating with respect to x, will get dy by dx is equals to. So since this is a constant, the derivative of the constant is 0 and the derivative of x is 1. And so my answer is dy by dx is equals to 1. So this is all about the question number 7. यहाँ पे सिर्फ हमें ये जो b है, जो जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए. आपको यही ध्यान में रखना है, दैट इज यहाँ पे जो b की पोजीशन है वहाँ पे हमें 1 चाहिए. So see the next example, that is example number 8. So y is equals to tan inverse 5 minus x upon 6x square minus 5x minus 3. So y is equals to tan inverse 5 minus x. So यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे हमें 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है. सो वी टेक हियर 1 एंड आल्सो यहाँ पे हमने उस 1 को कैंसिल आउट किया है. सो 1 दिया है और 1 हमने दे दिया है. सो दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट इन दिस एग्जाम्पल. मैंने अभी बताया कि अगर हमें tan इनवर्स का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो हमें उससे जब tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी फॉर्मूला से जब हम मैच करते हैं, तो हमें यह ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 1 आना चाहिए. इस एग्जाम्पल में कहीं पर भी 1 नहीं था. सो इसके लिए हमने 1 को एडजस्ट किया, इसको यहाँ पे हमने ले लिया और यहाँ पे हमने उसको कैंसिल किया. सो एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग 1. Now see, the numerator is as it is 1 plus, now this minus 1 and minus 3 becomes minus 4. And first here we find out the factors of this one is here. So 6x square minus 5x minus 4. So 6 4s are, that is 24. So we have to find out the factors of 24. Subtraction is 5. That is 8 3s are 5. So minus 8 and plus 3. So 6x square minus 8x minus 3x minus 4. So making the group of 2, will get 2x common. 3x minus 4 and यहाँ पे 3x minus 4. So the common is 2x plus 1 and in second bracket 3x minus 4. So हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए कि जिनका प्रोडक्ट ये है और जिनका सब्सट्रैक्शन 5 माइनस एक्स. सो जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं, दैट इज सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे. दैट इज 2x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 4. तो हमें मिला यहाँ पे 5 माइनस एक्स. So our answer is correct. And so tan inverse 5 minus x upon 1 plus in first bracket 2x plus 1 and in second bracket 3x minus 4. And so we are writing the factors, that is in the form of tan inverse a plus b upon 1 minus a into b. So a is 2x plus 1 minus 3x minus 4 upon 1 plus this term is as it is.
and now it is ready to solve. So this is the formula of tan inverse a plus b, sorry, a minus b upon 1 plus a plus b, a into b. So y is equals to tan inverse 2x plus 1 minus tan inverse 3x minus 4. मतलब हमने क्या किया, tan inverse a minus tan inverse b का फॉर्मूला यहाँ पे हमने ले लिया. Now differentiating with respect to x, we'll get here dy by dx is equals to 1 upon, so what is the derivative of tan x? It is 1 upon 1 plus x square. So इसका स्क्वायर हम लेंगे into derivative of 2x plus 1. Similarly यहाँ पे the derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square, that is 3x minus x bracket square, into derivative of 3x minus 4. So 1 upon 1 plus x square, 2x plus 1 bracket square as it is, and the derivative of 2x plus 1, derivative of 2x is 2 and the derivative of constant is 0, and so यहाँ पे हमें मिला 2. So 2 upon 1 plus 2x plus 1 bracket square. Similarly हम इसका भी फाइंड आउट करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा. और सी द डेरिवेटिव ऑफ 3x minus 4. So डेरिवेटिव ऑफ 3x is 3 and डेरिवेटिव ऑफ constant is 0, so यहाँ पे 3 है, and so this is the answer. Now see the example number 9. So example number 9 is same that of this example number 8. Just यहाँ पे हमें cot दिया है, so cot को हम tan में कन्वर्ट करेंगे. So cot इनवर्स 4 minus x minus 2x square upon 3x plus 2. तो हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करके इसका हम इनवर्स लेंगे. So इसका इनवर्स आएगा 3x plus 2 upon 4 minus x minus 2x square. 8th एग्जाम्पल में हमने जैसे किया था कि यहाँ पे 1 नहीं है, सो मैंने 1 लिया था और 1 मैंने कैंसिल किया था. सो हम 1 यहाँ पे लेंगे. इस टोटल ब्रैकेट से हम माइनस साइन कॉमन निकाल रहे हैं. सो इन ब्रैकेट विल गेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 एंड 1 मैंने कैंसिल किया. सो एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग 1, एंड सो व्हाट वी गेट, सो tan इनवर्स 3x plus 2 एज इट इज. एंड देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 एंड दिस माइनस माइनस plus 1, so minus 4 plus 1, that is minus 3, and so 1 minus 2x square plus x minus 3. एंड अगेन हमें ये सॉल्व करना है साइड में. सो सॉल्व करके हमें उसके फैक्टर्स मिल गए, दैट इज़ 3 2s are 6, फैक्टर्स आर ऑल्सो 3 2. सो यू नो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग दिस वन, एंड द फाइनल फैक्टर्स विल गेट, दैट इज़ 2x plus 3 and x minus 1. And if we take the addition of these two, so what we get, if we take the addition, that is 2x plus 1x, that is 3x, and plus 3 minus 1, it is plus 2, so we get this number. And so we are writing it as tan inverse 2x plus 3 plus x minus 1 upon 1 minus 2x plus 3 in second bracket x minus 1. So this is the formula of tan inverse a plus b upon 1 minus a into b. सो ये a मैंने यहाँ पे लिखा tan इनवर्स के साथ प्लस tan इनवर्स के साथ x माइनस 1. एंड नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x विल गेट व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, इट इज़ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे x कौन है, 2x प्लस 3 उसका स्क्वायर इंटू जिसके लिए मैंने x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3. एंड सेम फॉर दिस ब्रैकेट अगेन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो x माइनस 1 का स्क्वायर into d by dx of x minus 1. Now see this total bracket is as it is, and the derivative of 2x plus 3 is 2. So ये 2 को मैंने यहाँ पे लिखा है because 2 into 1, that is 2, plus यहाँ पे x का डेरिवेटिव होगा 1, so 1 into 1, so 1 upon 1 plus x minus 1 bracket square. So this is the end of the exercise 1.2, जिसमें हमने नियर अबाउट 50 to 60 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं. And now we start with the next concept, that is the logarithmic differentiation. So in this type of examples, what are the clues or what are the simple steps, this I am going to show you. And इसके साथ मीन्स logarithmic differentiation के साथ हम थोड़ा सा second concept, that is derivative of implicit functions, ये भी हम देखने वाले. So see what is the meaning of which type of examples we can solve with this concept, that is logarithmic differentiation. So if there is a function raised to function, or we can see
multiple functions are there in the examples, then we have to use the log concept, that is we take the log of both sides. Remember this one, if there is a function raised to function, एक फंक्शन दिया है और उसका पावर भी एक फंक्शन है, और मल्टीपल फंक्शन जिसमें है उस टाइप की जो एग्जांपल्स है वो हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के साथ सॉल्व करना है. आपको एग्जाम में ये नहीं दिया जाता है कि इसको आपको लॉग से सॉल्व करना है, ये तो आपको ही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एग्जांपल हम लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ सॉल्व करते हैं. सो सी फॉर एग्जांपल आई गिव यू वन एग्जांपल, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू x रेज टू tan इनवर्स x. तो देखो यहाँ पे x जो बेस है x वो भी एक फंक्शन है, एंड उसका रेज टू जो दिया है वो भी एक फंक्शन है. सो फंक्शन रेज टू फंक्शन यहाँ पे है. सो यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे हमें लॉग लेना है. जब आप इस टाइप के एग्जांपल देखोगे तो आपको पहली स्टेप जो आपकी होगी वो क्या है कि टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स. whenever you see the function raised to function or multiple functions, then your first step is taking log of both sides. तो आपको दोनों साइड की लॉग लेना है. सो फर्स्ट वन दैट इज log y इज इक्वल्स टू log ऑफ, ये टोटल जो है उसका हम लॉग लेने वाले हैं. सो log x रेज टू tan इनवर्स x. नाउ सी थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे. log y इज इक्वल्स टू, ये जो पावर है आपको पता है कि इन लॉग वी कैन पुट द पावर इन फ्रंट ऑफ द लॉग. मीन्स आपको अगर ऐसा दिया होगा दैट इज़ log ऑफ 3 स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ 2 log 3. वैसे ही हमने यहाँ पे वो tan इनवर्स जो पावर था उसको हमने इन फ्रंट ऑफ लॉग पुट किया एंड log x इज एज इट इज़. नाउ ये जो दिख रहा है वो एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है. सो यहाँ पे हमें यू वी जो रूल है u इंटू वी का रूल वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो देखो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला सीखा था उसमें है log x. log y का फॉर्मूला हमने नहीं सीखा है, log x का फॉर्मूला सीखा है. सो हमें ऐसा कंसिडर करना है कि ये हमारा x है जो हम बाकी के फंक्शन में करते हैं, वैसे ही हमें इसको भी करना है. आपको ये याद रखना है कि क्योंकि log के हर एक एग्जाम्पल में आपको ये करना है. सो जब भी आप देखोगे log y एंड डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो log x का कंसिडर करना है. सो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ log x, इट इज़ 1 अपॉन x. लेकिन यहाँ पे x कौन है, y है. सो y हमने लिखा एंड जिसके लिए मैंने x कंसिडर किया था, किसका किया था, y को किया था, उसका डेरिवेटिव इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ y. ये आपको हर एक स्टेप में इस टाइप के एग्जाम्पल में करना है. सो tan इनवर्स x. So see here we have to use the u into v formula. So u is as it is into derivative of v plus v as it is into derivative of u, that is tan inverse x. So this term is as it is 1 upon y divided by dx is equals to tan inverse x into derivative of log x is 1 by x plus log x as it is into derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. So divided by dx is equals to y. ये जो y यहाँ पे डिनोमिनेटर में है उसको हम ये साइड पे लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. एंड द लास्ट स्टेप दैट इज यू हैव टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ y. सो व्हाट इज y? So y is x raised to tan inverse x. So we have to put down this value here. X raised to tan inverse x, and the remaining term is as it is. So this type of examples we have to solve by the log method. Now we are going to see what is the meaning of derivative of implicit function. अब तक के जो भी हमने डेरिवेटिव के एग्जांपल्स देखे उसमें हमें जो फंक्शन दिया जाता है वो किस टाइप में रहता है, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. इस फंक्शन और इस टाइप के फंक्शंस हमने देखे. लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में एग्जांपल नहीं रहता है. सो इन दिस टाइप y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टाइप एग्जाम्पल्स आर नॉट गिवन. तो फिर कौन से रहते हैं, x एंड y बोथ वेरिएबल्स कम टुगेदर एंड वी कांट सेपरेट देम. मीन्स यहाँ पे x एंड y दोनों एक साथ हमें दिखाई देते और उन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते. तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है. पहले जो हमने एग्जाम्पल देखे उससे वो अलग है. तो कैसे हम देखेंगे, तो सी द वन एग्जाम्पल दैट इज x प्लस रूट एक्स इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1. तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का पैटर्न नहीं है.
पूरा का पूरा एग्जांपल हमें ऐसा दिया है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सो हमारा पहला स्टेप होगा दैट इज डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज़ 1। तो देखो यहाँ पे रूट एक्स है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे, ये टोटल हमारा एक्स है। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रूट एक्स, दैट इज़ 1/2 रूट एक्स। सो 1/2 रूट एक्स मतलब क्या है यहाँ पे एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसके लिए एक्स कंसिडर किया था उसका डेरिवेटिव, हमने इसके लिए ही एक्स कंसिडर किया था। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड द डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि हमें आंसर का लेफ्ट साइड जो होगा उसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स ही चाहिए। तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं वो आप देख लो। सो 1 + 1/2 रूट एक्स वाई इज एज इट इज एंड नाउ गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ u इंटू वी। सो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज x प्लस dy by dx is equals to 0. So 1 is as it is. Now we have to multiply by this 1. So ये जो बाहर का जो टोटल प्रोडक्ट टर्म दिख रहा है उससे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा, ये टोटल टर्म ऐसे ही रहेगी दैट इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 2 रूट एक्स वाई प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करेगा सो y अपॉन 2 रूट एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स इज एज इट इज़। सो नेक्स्ट टर्म दैट इज़ 1 प्लस ये जो x है इसको हम ऐसे लिखेंगे दैट इज़ रूट एक्स इंटू रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अंदर नीचे का जो है उसको भी हम स्प्लिट अप करेंगे रूट एक्स इंटू रूट वाई। सिमिलरली यहाँ पे भी हम y को रूट वाई इंटू रूट वाई कंसिडर करेंगे 2 इंटू रूट एक्स इंटू रूट वाई। सो यहाँ का रूट वाई कैंसिल, रूट एक्स कैंसिल। सो हमें क्या मिला दैट इज़ रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स अपॉन रूट 2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए हमें यहाँ तक डी वाई बाई डी एक्स के 2 टर्म्स हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कोई भी विषय नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। सो डी वाई बाई डी एक्स हमें दिख रहा है। सो वी टेकिंग द डी वाई बाई डी एक्स एज अ कॉमन। सो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। फर्स्ट मैंने डी वाई बाई डी एक्स को लेफ़्ट साइड में लिया है, बाद में हम उसको कॉमन लेंगे और बाकी के टर्म्स हमने राइट साइड में ले लिए। सो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज़ कॉमन। सो इन ब्रैकेट रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई प्लस 1, यहाँ पे कोई नहीं मतलब 1 है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे -1 बाहर है। सो -1 अपॉन 1 मतलब माइनस साइन मैंने कॉमन लिया है। सो 1 प्लस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स। सो नेक्स्ट वन दैट इज़ यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम इज 2 रूट वाई टेकिंग क्रॉस दैट इज रूट एक्स एंड यहाँ पे 2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये माइनस साइन ऐसे रहेगा। यहाँ पे भी हमने एलसीएम लिया दैट इज 2 रूट एक्स क्रॉस 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई। नाउ सी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सो ये क्वांटिटी ऐसे ही रहेगी, ये जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे आके इन्वर्स हो जाएगी। सो 2 विल गेट कैंसल एंड सो माई फाइनल आंसर इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2 रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स इंटू रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई। सो दिस इज़ द आंसर। सो मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताए, वन इज़ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस और सेकेंड वन दैट इज़ इम्प्लिसिट फंक्शन। इस कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं आपने देख लिया। नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट और एक्सरसाइज 1.3। सो एक्सरसाइज 1.3 इज टोटली ऑफ दिस logarithmic functions and implicit functions. So see the first example. Question number 1 इस exercise में भी बहुत सारे 40 to 50 एग्जाम्पल्स हैं। सो जो सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूँगी। सो फर्स्ट सी द फर्स्ट एग्जाम्पल केयरफुली। अगर आपको फर्स्ट एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आता है तो आप आगे के सब एग्जाम्पल अपने आप कर सकते हो। सो y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर एंड x प्लस 3 ब्रैकेट रेज़ टू 4। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में प्रोडक्ट है, बहुत सारे फंक्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 फंक्शंस है, उनके पावर्स भी है यहाँ पे। सो मैंने अभी बताया था कि व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शंस देन वी हैव टू टेक द लॉग ऑफ बोथ साइड्स। सो मेनी फंक्शंस आर देयर, सो वी टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। ये आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि इस जगह पे हमें लॉग लेना है।
ये आपको एग्जाम में बताया नहीं जाता है. सो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, सो लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग, इस टोटल ब्रैकेट का हमने लॉग लिया. नाउ लेफ्ट साइड इज वी हैव टू टेक कंटिन्यू. सो यहाँ पे x प्लस 1 स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट है बट यहाँ पे डिवीजन भी है, सो मैंने बाहर माइनस साइन दिया. और इन दोनों का हम एडिशन करेंगे, लॉग x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 3 ब्रैकेट रेज टू 4. नाउ सी लॉग y इज इक्वल्स टू 2 लॉग, ये क्या किया मैंने, यहाँ पर जो पावर है मैंने लॉग के आगे रखा है, 2 log x plus 1 minus, now we are going to open the bracket as well as putting the powers in front of the log. So 2 log x plus 2, ये माइनस प्लस माइनस होगा, ये जो 4 पावर we putting in front of log, so 4 log x plus 3. So now it gets simplified and now it is going to take the derivative. So differentiating with respect to x will get, so यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको कि ये x है ऐसा हम कंसिडर करेंगे. एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ log x, दैट इज़ 1 अपॉन x, एंड जिसके लिए मैंने x कंसिडर किया था उसका डेरिवेटिव दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ y. नाउ 2 इज एज इट इज़, द डेरिवेटिव ऑफ log x, ये टोटल जो है ब्रैकेट वो हमारा x है. सो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो ये ब्रैकेट एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट माइनस 2, सेम ईयर 1 अपॉन x, so 1 upon x plus 2 into d by dx of the bracket. Same here, that is 4 into 1 upon x into derivative of x plus 3. So 1 upon dy by dx is equals to, so see here 2 upon x plus 1 is as it is. Now the derivative of x is 1 and the derivative of constant is 0, minus 2 upon x plus 2 is same, and derivative of x is 1 and of 2 is 0, minus 4 upon x plus 3 and the derivative of x is 1 and 3 of 0, and finally we get that is 1 upon y dy by dx is equals to 2 upon x plus 1 minus 2 upon x plus 2, 1 into 2 is 2, and minus 4 upon x plus 3. Now we have to move this y to this side, so y in bracket whole this quantity is as it is, and finally we are going to put the value of y, so which is given your example. So y की ये जो टोटल वैल्यू है, जो एग्जाम्पल है वही हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन इंटू x प्लस 3 ब्रैकेट इज टू 4, एंड दिस ब्रैकेट इज एज इट इज. सो ऐसे ही हमें बाकी के सब एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं. सो द रिमेनिंग एग्जाम्पल्स विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.